طالبان کے اہم قیادت دوحہ سے افغانستان پہنچ گئی۔ افغانستان میں نئی حکومت کے قیام کے لیے طالبان کے نمائندے امیر خان متقی، حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار، افغان مفاہمتی کونسل کے سربراہ عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزئی کے درمیان بات چیت۔ جلد ہی نئی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا جائے گا۔ ترجمان طالبان۔ افغان دارالحکومت کابل میں زندگی تیزی سے معمول پر آ رہی ہے۔ بیشتر دکانیں کھل گئیں، صورتحال محفوظ، لوگوں اور گاڑیوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر موجود۔ نئی حکومت کے قیام سے ملک میں امن و استحکام آئے گا۔ طالبان کے اقتدار میں آنے سے اشیاء صرف کی قیمتوں میں کمی ہوگی، افغان عوام کی توقعات۔ افغان شہریوں کے جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی یا دل میں انتقامی جذبہ نہیں ہے۔ افغان سرزمین کسی صورت دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تمام غیر ملکیوں اور سفارتی عملے کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنایا جائے گا۔ ایسی جامع حکومت تشکیل دیں گے جو لوگوں پر مسلط نہیں بلکہ ان کی خدمت کرے گی۔ خواتین کو شرعی اصولوں کے تحت مکمل آزادی ہوگی۔ کابل میں ذبیح اللہ مجاہد کی نیوز کانفرنس۔ پرامن خوشحال افغانستان پاکستان کا عزم، وزیر اعظم سے افغان سیاسی رہنماؤں کے وفد کی ملاقات۔ افغانستان میں امن و استحکام کا پاکستان سے زیادہ کوئی خواہش مند نہیں، پائیدار امن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے۔ وزیر اعظم کا افغانستان میں اجتماعیت پر مبنی سیاسی حل کی ضرورت پر زور۔ افغانستان کی بدلتی صورتحال، وزیر اعظم عمران خان عالمی برادری سے مکمل رابطے میں۔ وزیر اعظم سے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن، ڈنمارک کی وزیر اعظم میٹ فریڈرکسن اور جرمن چانسلر اینگلا مرکل کا ٹیلی فونک رابطہ۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ پرامن اور مستحکم افغانستان پاکستان اور خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ افغانستان کا جامع سیاسی تصفیہ ضروری ہے جس کے لیے تمام افغانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ عالمی برادری کی افغان عوام کو حمایت جاری رہنی چاہیے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دونوں رہنماؤں کا مشترکہ مقاصد بالخصوص افغانستان کی بدلتی صورتحال پر قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکہ اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ پرامن اور مستحکم افغانستان پرسکون پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ افغانستان سے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کو ویزا کی سہولت، شہریوں کو تورخم بارڈر پر سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ آئندہ 2 دنوں تک افغانستان سے آنے والوں کا عمل مکمل ہونے کی توقع ہے۔ بھارتی میڈیا پاکستانی بارڈرز کے حوالے سے جھوٹا پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی نیوز کانفرنس۔ شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ ملک بھر میں آج 9 محرم الحرام کو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلوس و مجالس کا انعقاد۔ ذاکرین فضائل حسینی پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ ملک بھر میں یوم عاشور کے موقع پر امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے مربوط اقدامات۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں عزاداروں پر طاقت کا وحشیانہ استعمال، متعدد زخمی، 60 سے زائد گرفتار۔ کوریج کرنے والے صحافیوں پر بھی کیمرے توڑ دیے۔ عزاداروں نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر آزادی کے حق میں نعرے درج تھے۔
मुल्क भर में कोरोना के वार जारी 24 घंटों के दौरान मजीद 66 अफराद जाँ बहक 3,974 नए केसेस रिपोर्ट मस्बत केसेस की शरह 6.91% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज 57,460 टेस्ट किए गए। आज 9 मुहर्रम हराम को तमाम मरकजी वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले और कल 10 मुहर्रम को बंद होंगे। रावलाकोट हॉक्स की टीम कश्मीर प्रीमियर लीग के चैंपियन बन गई। फाइनल में रावलाकोट हॉक्स ने मुजफ्फराबाद टाइगर्स को 7 रन से शिकस्त दी। 170 रन के हदफ के ताक़ुब में मुजफ्फराबाद टाइगर्स की टीम 9 विकेटों पर 162 रन बना सकी। आसिफ आफरीदी मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कश्मीर प्रीमियर लीग PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई गई। स्पेन में 21 मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर वोल्टा आ अस्पाना नेदरलैंड्स के फैबियो जैकबसन ने चौथा मरहला अपने नाम कर लिया। जैकबसन ने 163.9 किलोमीटर का मुकर्रर फासला 3 घंटे 43 मिनट और 7 सेकंड में तय किया। एस्टोनिया के रायन थ्रामे की मजमूई बढ़तरी बरकरार। अमेरिका में वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन टेनिस टूर्नामेंट। अमेरिका के सेबास्टियन कॉर्ड, बल्गारिया के ग्रेगर दिमित्रियोव और पोलैंड हरकिच दूसरे मरहले में पहुंच गए। बरतानिया के एंडे मरे, अर्जेंटीना के डेगा श्वार्ट्जमैन, रूस के कैरन खिचानोव, कनाडा के फेलिक्स अलियासम और ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मोर्निक ने अगले के लिए क्वालिफाई कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। मैं हूं समीना राना और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, इन खबरों की तफसील जानिए इस ब्रेक के बाद। करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और अब खबरें तफसील के साथ। तालिबान की अहम क़यादत दोहा से अफगानिस्तान पहुंच गई है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और दूसरे रहनुमा कतर से अफगानिस्तान पहुंचे हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर और तालिबान के बानियों में से एक हैं और नायब सरबराह हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कंधार एयरपोर्ट पर उतरे, जहां लोगों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। ख्याल किया जा रहा है कि वो तालिबान की हुकूमत में अहम ओहदा संभालेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के दौरान वो 2 सूबों के गवर्नर रह चुके हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कतर में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की क़यादत करते रहे हैं। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के लिए तालिबान के नुमाइंदे अमीर खान मुत्तकी, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार, अफगान वफाहमती कौंसिल के सरबराह अब्दुल्ला और साबिक सदर हामिद करज़ाई के दरमियान बातचीत हुई है। तालिबान के तर्जुमान ने कहा है कि वो जल्द ही नई हुकूमत के क़याम का ऐलान करेंगे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में जिंदगी तेजी से मामूल पर आ रही है और बेशतर दुकानें मुकम्मल खुल गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि सूरत हाल महफूज है। लोगों और गाड़ियों की एक बड़ी तादाद सड़कों पर मौजूद है। लोगों ने उम्मीद जाहिर की है कि नई हुकूमत के क़याम से मुल्क में अमन व इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि तालिबान के इक़्तिदार में आने से अशिया सर्फ की कीमतों में कमी होगी। अफगान ज़राए इब्लाग ने दावा किया है कि साबिक अफगान सदर अशरफ गनी मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबूज़ाबी में मौजूद हैं और वहाँ पनाह के मुतमन्नी हैं। इससे पहले रूस ने दावा किया था कि अशरफ गनी अफगानिस्तान से फरार होते ही अपने साथ पैसों से भरी 4 गाड़ियाँ और 1 हेलीकॉप्टर भी ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान सदर को कुछ पैसे छोड़कर भी जाना पड़ा क्योंकि उनके पास मज़ीद पैसे रखने की गुंजाइश मौजूद नहीं थी। अफगान तालिबान की तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हमसाया ममालिक और आलमी बरादरी को यकीन दिलाते हैं कि अफगान सरजमीन
किसी सूरत दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। पाकिस्तान, रूस और चीन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, ताहम अफगान तालिबान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। काबुल में अपनी पहली बाज़ाब्ता न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में हुकूमत के लिए सियासी मुशावरत जारी है। किसी भी फरीक को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया जाएगा। किसी के साथ ज़ाती दुश्मनी या दिल में इंतकामी जज्बा नहीं है। तर्जुमान अफगान तालिबान ने कहा कि एक ऐसी जामी हुकूमत तश्कील देंगे जो लोगों पर मुसल्लत नहीं होगी बल्कि उनकी खिदमत करेगी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल के शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि उनके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि काबुल में गैर मुल्की सफारतकारों की मौजूदगी हमारे लिए बहुत अहम है। तमाम गैर मुल्कियों और सफारती अमले को यकीन दिलाते हैं कि उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इक़्तिदार की मुंतकली के बाद काबुल के तरफ मौजूद मज़ीद तालिबान शहर में दाखिल हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अफ़गान अवाम ने अपने दीनी उसूलों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जिन पर समझौता नहीं होगा। ख़वातीन को शरई उसूलों के तहत मुकम्मल आज़ादी होगी। अफ़गानिस्तान में बसने वाले तमाम अफराद एक दूसरे के भाई हैं, मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तर्जुमान अफगान तालिबान ने कहा कि मीडिया के साथ मुकम्मल राबते में रहूंगा, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। सवालों के जवाब देते हुए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अमरीका या आलमी बिरादरी के किसी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम मुल्क के अंदर या बाहर दुश्मन नहीं चाहते। काबुल में लूट मार या किसी के घर में दाखिल होने वाले तालिबान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि लूट मार करने वालों की पहचान करके सख्त सजाएं देंगे। अशरफ गनी हुकूमत ने मुज़ाकरात की हर कोशिश नाकाम बनाई थी। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में खून खराबा या मजीद जंग नहीं बल्कि पायदार अमन के हक में हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कायदाना किरदार अदा कर रहा है और इसी पस मंज़र में वज़ीर आज़म से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बरतानिया और डेनमार्क के वज़राए आज़म और जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल का टेलीफोनिक राबता हुआ। अफगान सियासी रहनुमाओं ने भी वज़ीर आज़म से इस्लामाबाद में मुलाकात की। इसकी तफसीलात हारून इलाही तूर से। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल में नई हुकूमत के क़याम और अफगानिस्तान के महफूज मुस्तकबिल के हवाले से पाकिस्तान ठोस अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने अफगान मसले के महफूज और जामे सियासी हल के लिए तमाम फ़रीक़ैन की कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम का पाकिस्तान से ज्यादा कोई ख्वाहिशमंद नहीं। डेनमार्क की वज़ीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने वज़ीर आज़म इमरान खान से टेलीफोनिक राब्ता किया और अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करते हुए वाज़ेह किया कि अफगान अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और सलामती सबसे अहम है। डेनमार्क की वज़ीर आज़म से बातचीत में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान सफारती अमले और आलमी तंजीमों के स्टाफ के अफगानिस्तान से इनखला के लिए सहूलतें फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म मैट फ्रेडरिक्सन ने इस सिलसिले में ताआवन और कोशिशों पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के साथ एतवार के रोज राब्ता हुआ। दोनों रहनुमा एक बार फिर इस हवाले से बातचीत करेंगे ताकि अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर मुकम्मल मुशावरत से आगे बढ़ा जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीन के सफीर और इराक के वज़ीर खारजा से मुलाकात में भी अफगानिस्तान के मामले पर बातचीत की। इस्लामाबाद में अफगान सियासी रहनुमाओं से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा करते हुए कहा कि हम इस सिलसिले में मुकम्मल हमायत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र अफगान क़यादत की बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क को देरपा अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मिलकर तामीरी किरदार अदा करें। वफ्द के अरकान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए कहा कि मुख्तलिफ ग्रोहों पर मुश्तमिल अफगान मुआशरे में मसले का जामे हल नागुज़ीर है। वफ्द के अरकान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने की ठोस ख्वाहिश के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी अफगानिस्तान के मामले पर भरपूर सफारती किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर खारजा 25 से 27 अगस्त तक तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वज़ीर खारजा ताज़ा इलाकाई सूरत हाल पर खित्ते के मुल्कों की क़यादत से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले का जामे सियासी हल चाहता है और इस सिलसिले में आलमी बरादरी खास तौर पर खित्ते के मुल्कों के भरपूर तामीरी किरदार का ख्वाहिशमंद है। हारून इलाही तूर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान टेलीफोनिक राबते में अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है।
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन ने ट्राइका प्लस का हिस्सा होते हुए अमन की काविशों को आगे बढ़ाने में गिरां कदर मुआवनत फराहम की। वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और आइंदा के लाएहमल के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुनक़िदा कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से चीनी हम मनसब को आगाह किया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में निहायत ज़रूरी है कि अफ़गान अवाम और उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। आलमी बिरादरी की जानिब से अफ़गान अवाम की हिमायत का जारी रहना नागुज़ीर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आलमी बिरादरी को अफ़गानिस्तान की मुसलसल मुआशी मुआवनत बरकरार रखनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा ने अपने चीनी हम मनसब को अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ ममालिक के सिफारती और आलमी इदारों के अमले, मीडिया और दीगर अफराद के इनखला के लिए पाकिस्तान की काविशों और अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल पर इलाकाई इत्तेफ़ाक़ राय के हुसूल के लिए अपने मुतवक्के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका मकासद बिलखुसूस अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ता रखने पर इत्तेफ़ाक़ किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि चमन और तोरखम बॉर्डर पर कोई मसला नहीं, तमाम मामलात पुरसुकून अंदाज से जारी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अफ़गानिस्तान से आने वालों को ऑन अराइवल वीज़ा फराहम होगा। अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुल्की साफियों को ट्रांजिट वीज़ा दे रहे हैं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हमने अफगानिस्तान से गैर मुल्की सिफारतकारों और अमले को पाकिस्तान आने के लिए सहूलत दी। आइंदा 2 दिनों तक अफगानिस्तान से आने वालों का अमल मुकम्मल होने की तवक्को है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान अफगान सरहद पर 2 तरफ़ा तिजारत मामूल के मुताबिक जारी है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान बॉर्डर के हवाले से जो प्रोपेगेंडा कर रहा है वो गलत है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से मुहाजिरीन की आमद की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि आशुरा के मौके पर जहां ज़रूरत है वहीं पर मोबाइल सर्विस बंद कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ वसील बुनियाद ताल्लुकात का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में देर पामन के लिए हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इन ख्यालात का इजहार GHQ रावलपिंडी में 8 रुकनी आला सतह अफगान वफ़द से मुलाकात के दौरान किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में क़याम अमन खित्ते के अमन खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान अफगान अवाम के शाना बिशाना खड़ा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सबकी शमूलियत के साथ तस्फिया इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए अहम है। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तफसील से तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों और किरदार को सराहा। अफगान वफ़द ने अफगानिस्तान की समाजी इक़्तिसादी तरक्की और क़याम अमन के लिए पाक फ़ौज की कुर्बानियों को भी सराहा। नाज़रीन, अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के लिए मुशावरत का अमल तेज हो गया है। अफगानिस्तान में मुस्तकबिल के सियासी और इंतजामी निज़ाम के लिए राबते जारी हैं। रूस और तुर्की ने भी अफगानिस्तान में तमाम अफगान धड़ों पर मुश्तमिल नई हुकूमत की हिमायत का ऐलान किया है। अफगानिस्तान में इज्तिमाइयत पर मबनी सियासी और इंतजामी निज़ाम की बात सबसे पहले पाकिस्तान ने की थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुरू दिन से ही अफगानिस्तान में पायदार अमन और मसले के हल के लिए इज्तिमाइयत पर मबनी निज़ाम की तजवीज़ दी थी। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने सरकारी टीवी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में तमाम सियासी और मजहबी धड़ों पर मबनी कौमी मुज़ाकरात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के बाद से तालिबान का अब तक का रवैया मुस्बत रहा है। तालिबान की जानिब से नए इंतज़ामी निज़ाम से मुतालिक दूसरों की राय सुनने का खैर मकदम करते हैं। तुर्की ने भी तालिबान के मुस्बत रवैये का खैर मकदम करते हुए कहा कि काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि तालिबान की जानिब से इब्तदाई बयानात हौसला अफजा हैं। अफगानिस्तान में गैर मुल्कियों और सिफारती अमले से मुतालिक तालिबान के मुस्बत रवैये को सराहते हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने तालिबान को काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में मुआवनत की भी पेशकश की है। तुर्की ने अफगानिस्तान से अपने 300 से ज़ायद शहरियों को निकाल लिया है, जबकि सिफारत खाने के अमले को काबुल के हवाई अड्डे पर मुंतकिल कर दिया है। चीन ने काबुल एयरपोर्ट पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़यात का अमरीका को जिम्मेदार करार दे दिया है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका इराक, शाम और अफ़गानिस्तान में तबाही का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अमरीका जहां भी जाता है पीछे तबाही के निशानात छोड़ जाता है। अफगानिस्तान से गैर मुल्की सिफारतकारों और आम शहरियों के इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट से परवाज़ें दोबारा शुरू कर दी गई हैं। खबर रसां इदारे के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 12 परवाज़ों ने उड़ान भरी। इन परवाज़ों के जरिए ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड समेत दीगर ममालिक के शहरियों और अफगान हुकूमत के लिए काम करने वाले मुलाजमीन को वहाँ से निकाला गया है। तालिबान की जानिब से एक बयान में तमाम सरकारी मुलाजमीन के आम मुआफ़ी का ऐलान किया गया है। उन्होंने मुलाजमीन को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हुए कहा है कि वो काम पर वापस आ जाएं और मामूल के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। अफगानिस्तान में काबुल समेत दीगर शहरों में निज़ाम ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है।
तालिबान की वफूद लोगों का एतमाद बहाल करने के लिए ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात कर रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक रवान दवा है। दुकानें खुलने से लोग रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया खरीदने में मसरूफ़ हैं। तालिबान ने काबुल के शहरियों के लिए एक हेल्पलाइन काम की है ताकि किसी भी परेशानी या मसले की सूरत में राबिता किया जा सके। काबुल के इलाके किला फतहुल्ला में साबिक रुकन पार्लियामेंट के घर डकैती की कोशिश करने वाले मसल्ला लीडरों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो तालिबान के नाम पर लूट मार कर रहे थे। इलाका मुखिरों ने तालिबान की जानिब से दिए गए इमरजेंसी नंबर पर कॉल की, जिस पर कार्रवाई अमल में लाई गई। तालिबान मिलिट्री कमीशन के सरबराह मुल्ला याकूब ने तालिबान के लिए काबुल में किसी भी शहरी के घर में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। एक ऑडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि तालिबान मुल्क भर बिलखुसूस काबुल के किसी शहरी के घर में दाखिल ना हो। उन्होंने किसी की जाती कार या गाड़ी लेने से भी रोक दिया और कहा कि हुकूमती गाड़ियां बाद में दी जाएंगी। काबुल में तालिबान के एक वफ्द ने अब्दुल हामिद हमासी की सरबराही में एक अस्पताल के डॉक्टर्स और तिबी अमले से मुलाकात की, जिसमें खवातीन डॉक्टर्स भी शामिल थीं। उन्होंने तिबी अमले को तहफ़्फ़ुज़ और मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया और कहा कि तिबी अमला बिला खौफ व खतर मेहनत और दिलजोई के साथ अवाम की खिदमत जारी रखे। काबुल में रेस्टोरेंट्स, दुकानें और कारोबार मामूल के मुताबिक खुले रहे। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि अफगानिस्तान में सूरत हाल मुसलसल तब्दील हो रही है। ये कहना कबल इस वक्त होगा कि वहाँ किस तरह की हुकूमत वजूद में आएगी। ब्रसल्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि काबुल में इंसानी हुकूक का एहतराम करने वाली एक कसीरुल बुनियाद हुकूमत की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत तालिबान का मुकाबला करने और पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार में नाकाम रही। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि हम नेटो के 800 के करीब सिविलियन एहलकारों और अफगान मुलाजिमीन की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, जरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, शहीद करबला है ये। नाज़रीन, मुल्क भर में आज 9 मुहर्रम उल हराम को नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए जुलूस व मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है। ज़ाकिरीन फ़ज़ाइल हुसैनी पर रोशनी डाल रहे हैं। मुल्क भर में यौम आशूर के लिए सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को दफ़ा 144 का निफाज किया गया है। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी होगी, जबकि मोबाइल फ़ोन सर्विस हस्बे ज़रूरत बंद रहेगी। सूबे भर में 36,000 से ज़ायद मजालिस और 9,300 जुलूस मुनक्किद होंगे, जिन्हें सिक्योरिटी के हवाले से 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। 4,10,000 पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर रहेंगे। रेंजर्स की 35 और आर्मी की 66 कंपनियां भी फ़राइज़ अंजाम देंगी। मजालिस और जुलूसों की निगरानी CCTV और सेफ सिटी कैमरों की मदद से की जाएगी। कराची समेत सिंध भर में भी यौम आशूर के जुलूसों के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मुख्तलिफ इलाकों के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है, जबकि जुलूसों और इमाम बारगाहों की निगरानी के लिए CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। जुलूस के रास्तों में दुकानों और शॉपिंग सेंटर्स को भी सील कर दिया गया है। बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से जुलूस के रास्तों को जांच पड़ताल की जा रही है। उधर कोयटा समेत बलोचिस्तान भर में भी आशूरा मुहर्रम के जुलूस की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी इदारों के साथ पाकिस्तान आर्मी की 3 कंपनियों को स्टैंड बाय रखा गया है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम को कोयटा में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। CCTV कैमरों की मॉनिटरिंग ऑपरेशनल कंट्रोल रूम में की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी आशूरा मुहर्रम के जुलूसों के हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। जुलूसों के रास्तों को सील कर दिया गया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे हिफाजती इंतजाम पर मामूर रहेंगे। हसास शहरों में यौम आशूर पर मोबाइल सर्विस मुअत्तल रहेगी, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी के लिए दफ़ा 144 का निफाज कर दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 9वीं मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद हो गया है। शहर में मुनक्किद होने वाली मजालिस, अज़ादार और मातमी जुलूसों की सूरत हाल जानने के लिए हमने राबिता किया है। नुमाइंदा शाहिद वफासी। शाहिद वफा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं?
جی اس حوالے سے جو 9 محرم کو ایک روایت ہے لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس برآمد ہوتا ہے. اس کا مقام پانڈو اسٹریٹ ہے، جبکہ اس کے علاوہ 2 اور مقامات ہیں جو ٹھوکر نیاز بیگ اور شاد باغ، یہاں سے بھی شبیہ ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوتے ہیں. صوبائی دارالحکومت میں مجموعی طور پر 378 سے زائد مجالس اس وقت جاری ہیں، جبکہ 80 جلوس جو ہیں وہ چھوٹے بڑے شہر کے مختلف علاقوں سے اس وقت برآمد ہو چکے ہیں اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جو مرکزی جلوس ہے یہ پانڈو اسٹریٹ سے شروع ہوا تھا اور اس وقت یہ سراج بلڈنگ پہنچ چکا ہے اور یہاں پر کچھ ہی دیر کے بعد نماز ظہرین ادا کی جائے گی اور نماز مغربین جو ہے وہ پرانی نارکلی کے علاقے میں ادا ہوگی. یہاں پر اس جلوس کے جو شرکاء ہیں ان کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں. پورے لاہور میں 5000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی ان جلوسوں کی نگرانی کی جا رہی ہے. یہاں پر جو عزادار ہیں وہ ماتم کرتے ہیں تو ان کو ابتدائی طبی امداد کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے فرسٹ ایڈ کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، جبکہ اس بات کی خاص کو یقینی بنایا جا رہا ہے کہ جو عزادار ہیں وہ کورونا کے حوالے سے جو احتیاطیں ہیں ان پر عمل کریں، جیسے کہ ماسک لگایا ہو. تو اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہمیں کہیں کہیں نظر آ رہا ہے. یہاں پر جلوس کے جو مرکزی راستے ہیں اس پر سبیلیں بھی لگائی گئی ہیں جہاں پر لوگوں کو پینے کے لیے پانی فراہم کیا جا رہا ہے. یہ جو مرکزی جلوس ہے یہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا پانڈو اسٹریٹ سے شروع ہوا ہے اور رات کو 12 بجے پانڈو اسٹریٹ پر ہی اس کا اختتام ہوگا، جبکہ اس کے بعد رات کو 12 بجے یوم عاشور کا مرکزی جلوس جو ہے وہ نثار حویلی سے برآمد ہوگا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شاہد وفا ہمارے ساتھ موجود تھے، لاہور میں جلوسوں کے حوالے سے صورتحال سے تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی کے جو انتظامات کیے گئے ہیں لاہور میں، دیگر شہروں کا بھی ہم نے ذکر کیا، جیسے کہ پشاور میں بھی سیکیورٹی کے انتظام کیے گئے ہیں، کراچی میں بھی، اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ میں بھی موبائل فون سروس جو ہے اس کو بند کیا گیا ہے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں آج 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس نشتر پاک سے برآمد ہوگا، جو اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کھارا در میں امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا. جلوس کی سیکیورٹی کے حوالے سے جانتے ہیں اپنے نمائندے ضمیر عباس سے. جی ضمیر عباس، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی 9 محرم کا جو مرکزی جلوس ہے وہ کچھ دیر میں نشتر پاک سے برآمد ہوگا. اس وقت جو ہے مرکزی مجلس جاری ہے جس میں علامہ شہنشاہ نقوی کربلا کے واقعے کے حوالے سے اس کے فلسفے، اس کی اہمیت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کراچی شہر میں چھوٹے بڑے جلوس جو ہیں وہ یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. ایک مرکزی مجلس ہوتی ہے اور پھر مرکزی مجلس کے بعد ایک مرکزی جلوس برآمد ہوتا ہے جو کہ اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کا جو روایتی راستہ ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے یہ نشتر پاک سے برآمد ہوگا. نمائش چرنگی سے ہوتا ہوا یہ ایم اے جناح روڈ، پھر ریمبو سینٹر، امپریس مارکیٹ، تبت سینٹر اور اس کے بعد پھر یہ جامع قلعت اور ٹاور سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوگا. اس کے درمیان یہ تقریباً 1 بجے سے 2:30 بجے کے درمیان یہ نماز ظہرین ادا کریں گے امام بارگاہ امام رضا کے آگے، جس کے بعد وہاں پہ درس ہوگا. اس کے بعد یہ پھر اپنے راستے پہ گامزن ہو جائے گا. جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 5000 سے زائد پولیس افسران اور جوان جو ہیں اس پورے روٹ کی سیکیورٹی کے لیے مامور کیے گئے ہیں. یہاں پہ تمام جو راستے ہیں، جو مرکزی روٹ کے جو راستے ہیں انہیں بند کر دیا گیا ہے. صرف انٹری اور ایگزٹ کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں، جہاں سے صرف انٹری کے لیے ایک پروسیجر رکھا گیا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ واک تھرو گیٹس ہیں جہاں سے عزادار یا جو بھی لوگ اس جلوس میں شرکت کے لیے آئیں گے وہ پہلے واک تھرو گیٹس میں آئیں گے، وہاں پہ ان کی چیکنگ ہوگی اور اس کے بعد جو ہے ان کو پرمیشن ہوگی اس جلوس میں انٹر ہوں. اسی طریقے سے ٹاور کے بعد ایک راستہ بنایا گیا ہے جہاں سے ایگزٹ کا راستہ رکھا گیا ہے. وہاں صرف اور صرف گاڑیاں یا جو بھی پولیس کے افسران آ رہے ہیں یا جو بھی میڈیا کی ٹیمز آ رہی ہیں وہ اس راستے سے ایگزٹ ہوں گی. جو چھوٹی بڑی گلیاں اس روٹ پہ جمع ہوتی ہیں وہ ساری بند کر دی گئی ہیں. 5000 سے زائد پولیس افسران اور جوان یہاں پہ سیکیورٹی دے رہے ہیں. تمام بڑی عمارتوں پہ سنائپرز جو ہیں وہ تعینات کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایریل نگرانی بھی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس پورے راستے کو پہلے بم ڈسپوزل اسکواڈ جو ہے وہ جو چیک کر چکا ہے. جو ان کے پاس اسنیفنگ ڈاگز ہیں وہ بھی اس راستے کو چیک کر چکے ہیں. اس کے کلیئرنس کے بعد اس جلوس کو جو ہے یہاں پہ اجازت ہوگی کہ وہ مرکزی جلوس جو ہے وہ برآمد ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ سیکیورٹی بلکہ جو جلوس برآمد ہوتے ہیں دوسرے علاقوں سے، دوسرے ایریا سے، اس کی سیکیورٹی کے لیے بھی پولیس معمور کی گئی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ اس مرکزی جلوس. بہت شکریہ ضمیر عباس کراچی سے تفصیلات سے آگاہ.
नासिन यौम आशूर के मौके पर इराक में दुनिया भर से हजारों अफराद मातमी जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं और मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सुहेल बुखारी वहां पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात मालूम करते हैं। सुहेल बुखारी, बताइएगा कि इराक में दुनिया भर से हजारों मातमी अफराद जुलूसों में शिरकत करते हैं, इन जुलूसों की तफसीलात क्या हैं? नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना अकीदत पेश करने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया से लोग करबला पहुंच चुके हैं, जिनमें अमेरिका, अफ्रीका, तंजानिया, अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ज़ायरीन शामिल हैं। करबला में आज 9 मुहर्रम का दिन है। 9 मुहर्रम का दिन हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब किया जाता है। इस वक्त लोग अल मुबारक के जुलूसों की शक्ल में रोज़ा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम को पुसा देने के लिए रमा दवा हैं। इराकी हुकूमत ने ज़ायरीन की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजामात कर रखे हैं। करबला के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और फौज के खुसूसी दस्ते मुतय्यन हैं, जो करबला में दाखिल होने वाले ज़ायरीन की खुसूसी निगरानी कर रहे हैं। ज़ायरीन की हिफाजत के लिए करबला के मुख्तलिफ अतराफ में फिजाई निगरानी भी की जा रही है। करबला के लोगों की तरफ से करबला के दाखिली रास्तों से लेकर रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक खुसूसी सबीलों का एहतमाम किया गया है, जहां पर यकम मुहर्रम से लेकर सोयम तक बिला मुआवजा खाना और मशरूबात ज़ायरीन के लिए मुहैया किए जाएंगे। इस वक्त करबला में 5000 से ज़्यादा मुकामात पर सबीलें लगाई गई हैं। रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली आयतुल्लाह मेहदी करबलाई ने मुहर्रम हराम के अपने खुसूसी पैगाम में तमाम दुनिया बिलखसूस आलिम इस्लाम से कहा है कि वो अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं और इंसानियत की फलाह व बका के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में इत्तेहाद और भाईचारे की शदीद ज़रूरत है। करबला में मौजूद पाकिस्तानी ज़ायरीन अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांग रहे हैं। पाकिस्तानी एम्बेसी बगदाद ने करबला में खसूसी हेल्प काउंटर भी लगाया है, ताकि किसी भी परेशानी की सूरत में पाकिस्तानी ज़ायरीन की मदद की जा सके। सफीर पाकिस्तान जनाब अहमद अमजद अली इस मकसद के लिए करबला में खुद मौजूद हैं। वीज़ा के मसाइल के वजह से लाखों पाकिस्तानी ज़ायरीन इस मरतबा इराक नहीं आ सके। ज़ायरीन पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया सुहेल बुखारी, आपने हमें इराक से अपडेट किया है। यौम आशूर के मौके पर इराक में दुनिया भर से हजारों अफराद मातमी जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं। नाज़रीन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की सरबलंदी और हक और सच की खातिर मैदान करबला में बेमिसाल कुर्बानी देकर शहादत का अजीम रुतबा पाया, जबकि यजीदियत और बातिल को शिकस्त मिली। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बहादुरी और इस्लाम की खातिर अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाली है। कराची से हमारे नुमाइंदे अली असगर अरबाब ने। हक, सच और इस्लाम के सच्चे सिपाही हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और बातिल के पैरोकार यजीद के दरमियान जंग का मार्का इराक के इलाके मैदान करबला में पेश आया। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 10 मुहर्रम को 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बेअत करने से इनकार किया और यजीदी कुव्वतों का मुकाबला करने और शहादत का अजीम रुतबा हासिल करने को तरजीह दी। इस्लामी तारीख में सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और शेर खुदा हज़रत अली करमला वजह के बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनकी बहादुरी और शुजात के बायस अहम मकाम हासिल है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हक और सच का अलम बुलंद करके मुख्तसर लश्कर के बावजूद जिस तरह यजीद के जुल्म को ललकारा, उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। करबला के मैदान में शदीद गर्मी में प्यास की शिद्दत से रोते मासूम बच्चों और ख़ानदान की आह पुकार के बावजूद यजीद और उसके हवारियों ने जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा करके पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मासूम बच्चों और ख़ानदान के साथ शहादत के रुतबे को तरजीह दी और यजीद के जुल्म को आखिरी दम तक ललकार कर नवासाए रसूल का हक अदा किया। उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बेमिसाल और नई तारीख रकम की, जिसके बायस पूरी दुनिया में मुसलमान यजीदियत पर मलामत करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम के सच्चे सिपाही की हैसियत से हक और सच के खातिर बहादुरी से लड़कर दुनिया को बावर कराया कि हक की हमेशा फतह होती है और बातिल को जिल्लत का सामना करना पड़ता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हक, सच और इस्लाम का झंडा बुलंद करके यजीदियत और बातिल को खाक में मिला दिया और इस्लाम के मुहाफिज की हैसियत से बेमिसाल तारीख रकम की, जिसके बायस उनका नाम रहती दुनिया तक एक सितारे की तरह चमकता रहेगा। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
नाज़रीन, वाक़या करबला बुनियादी तौर पर हक़ व बातिल का मार्का था, जिसके तारीखी मंजर से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद मज़हर अब्बास अपनी इस रिपोर्ट में। 60 सने हिजरी में यजीद तख्त नशीन हुआ तो नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने नाना की शरीयत और दीन की बका के लिए यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। इमाम आली मकाम ने खानदान और साथियों समेत मदीना छोड़कर मक्का चले गए और 3 शाबान को मक्का पहुंचे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इराक के इलाके कुफा से खतूत आए कि वहाँ के लोग इनसे मोहब्बत और पैरवी करने वाले हैं। मुस्लिम बिन अकील को कुफा रवाना किया गया ताकि वो असल सूरत हाल मालूम करे। मुस्लिम बिन अकील ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कुफा आने का खत लिखा। गवर्नर कुफा इब्न जियाद ने अमान के वादे के बावजूद मुस्लिम बिन अकील को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब 8 ज़िलहज को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्के से कुफा के लिए रवाना हुए। इनके साथ कोई बहुत बड़ा लश्कर नहीं था। आप अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका गया, जिसके बाद आपने अपना रुख कुफा से करबला की तरफ मोड़ लिया। 2 मुहर्रम उल हराम को इमाम आली मकाम अपने रफ़का समेत करबला पहुंचे। 3 मुहर्रम उल हराम को यजीदी लश्कर करबला पहुंचा। 7 मुहर्रम उल हराम को यजीदी लश्कर की जानिब से मोहम्मद के नवासे और उनके खानदान और साथियों पर पानी बंद कर दिया गया। 9 मुहर्रम उल हराम को शिमर लईन ने अपने लश्कर के हमरा मैदान करबला में कदम रखा। 10 मुहर्रम उल हराम सुबह जंग शुरू हो जाती है और इमाम आली मकाम सैयदना हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके भाई अब्बास बिन अली और शीर खार अली असगर समेत बनी हाशिम के 17 अफराद और 50 से ज्यादा असहाब शहीद कर दिए जाते हैं। जंग के बाद खैमों को आग लगा दी जाती है। इमाम आली मकाम के बेटे हजरत सज्जाद समेत आले मोहम्मद की खवातीन को कैदी बना लिया जाता है। करबला में आले मोहम्मद पर जो जुल्म हुआ, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। करबला में हक व बातिल का मार्का हुआ और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, उनके रफ़का, खवातीन और बच्चों को जंजीरों में जकड़कर शाम भेज दिया जाता है। वाक़या करबला मुसलमानों के नज़दीक तारीख़ इस्लाम का दिल खराश तरीन और स्याह तरीन वाक़या है। मोहम्मद मज़हर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मरसिया शायरी की कदीम तरीन असनाफ़ सुखन में से एक है। उर्दू मरसिया नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके खानवादे की कुर्बानियों और अखलाक हमीदा के इजहार का मौसर ज़रिया है। मरसिया की तारीख के बारे में मुल्तान से शेराज दुरानी की रिपोर्ट देखिए। करबला भी लफ्ज़ हक़ की मुस्तकिल तफसीर है, खून अहले बैत से लिखी हुई तहरीर है। करबला बाबे हरी में सब्र की तामीर है, इस जमीन पर गुलशने फिरदौस की तस्वीर है। 5 हरफों में निहा कुरान की तालीम है, एक लफ्ज़ करबला मंजिल गहे ताज़ीम है। मरसिया वो सिनफ़े सुखन है जिसमें दुनिया से रुखसत होने वाले की तारीफ़ व तौसीफ़ बसद हसरत व गम की जाती है। नामवर अदीब व शायर इफ्तिखार आरिफ के मुताबिक मरसिया निगारी हक की आवाज़ और जालिम के आगे डट जाने का इस्तारा है। 680 ईस्वी या 61 हिजरी में करबला में पेश आने वाले लर्जा खेज वाक़े पर पहला मरसिया एक अरब शायर उबैदुर्रहमान उबैदुल्लाह बिन हुदा ने कहा था। वाक़या करबला के बारे में जो तख्लीकी और अदबी सरगर्मी बरे सगीर में नजर आती है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। मंगवा तो खबर खैमा शाह शुहदा की ये गुल है कि हिलती है जमीन करबो बला की। क्या दर्द है इस वक्त के बेताब हैं सरवर, आहू की सदा यहाँ चली आती है मुकर्रर। रोने में कई बार दमे सर्द भरा है, तू सुन तो कि फरियाद में क्या दर्द भरा है। 1400 साल से वाक़यात करबला और शोहदाए करबला के किरदार व अफकार पर मरसिया गोई का सिलसिला जारी है। उर्दू का सबसे पहला मरसिया गो दक्कनी शायर मुल्ला वजीही था। लखनवी शोरा मीर अनीस और मीर दबीर ने मरसिया को आला मकाम अता किया। पाकिस्तान में कई शोरा ने मरसिया लिखा, जिनमें आले रज़ा ज़ैदी, जोश मलिह आबादी, नसीम अमरोही, सबा अकबर आबादी और हिलाल नकवी शामिल हैं। फैज़ अहमद फैज़ और करार हुसैन ने भी जदीद मरसिया पर काम किया। मरसिया दुनिया की हर ज़ुबान में लिखा गया है। मरसिया का ज़्यादा इस्तेमाल वाक़या करबला को बयान करने में होता है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत में बनाया गया झंग सिटी का 150 साल पुराना ताज़िया हुसैनी की बनावट और तैयारी के मराहिल में शुरू है। ताज़िया 10 मुहर्रम को जुलूस की जीनत बनेगा। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं पीटीवी के नुमाइंदे सैयद अदनान नूर। लफ्ज़ ताज़िया अज़ा से निकला है। अज़ा के मानी सब्र की तलकीन
اور ताज़िये का मतलब सब्र का मुजस्मा है। जंग के 150 साल पुराना ताज़िया हुसैनी की तैयारी यकम मुहर्रम से ही अज़ादार शुरू कर देते हैं और 10 मुहर्रम को 150 से ज़ायद अफराद ताज़िया हुसैनी को लेकर जुलूस में शामिल होते हैं। ये ताज़िया 150 साल पुराना है। हमारे दादा गुलाम हुसैन उर्फ बाबा हुसैनी के नाम से ये मशहूर है। उसके बाद और इसका यकम मुहर्रम से 9 मुहर्रम तक हम इसका काम करते हैं। बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनने से पहले शोदाए करबला से मोहब्बत और अकीदत में ये ताज़िया चनियोट के माहिर कारीगरों से तैयार करवाया था। ताज़िया जात को देखकर करबला की याद ताज़ा होती है। ज़ियारत ताज़िया इमाम हुसैन सलाम ये शहीद करबला की याद ताज़ा ले जाता है। हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिमुस्सलाम नवासे रसूल के ये दिन है और तमाम मोमिनीन यहाँ पे मौला की ड्यूटी के लिए आते हैं। अकीदत बंदों के मुताबिक ताज़िया की तैयारी के मराहिल में हिस्सा लेकर उन्हें दिली सुकून मिलता है। ताज़िया जात इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शोदाए करबला के साथ मोहब्बत और अकीदत का मुनफरिद अंदाज है। सैयद अदनान नूर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, छांग। नाज़रीन, चिन्योट पूरी दुनिया में अपने लकड़ी के ताज़ियों के हवाले से मशहूर है। ये ताज़िए मुहर्रमुल हराम के दौरान चिन्योट में तैयार किए जाते हैं और फिर इसको चौक थराकान में इकट्ठा किया जाता है। नाज़रीन, इस वक्त आपको बराह रास्त दिए जाएंगे वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। सूबाई असम्बली व सूबाई वज़ीर हुकूमत पंजाब जनाब नदीम कुरैशी साहब, मेंबर सूबाई असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी हुकूमत पंजाब, हमारे मखादीम, मशाइख और मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जनाब सैयद सुहेब बिलानी साहब का, जो आप हमेशा सरपरस्ती फरमाते हैं, अपना वक्त देते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, तशरीफ़ लाते हैं। जनाब मखदूम सैयद हसन रज़ा मशहदी साहब, मखदूम सैयद अली मेहदी शमसी, जनाब सिब्तैन रज़ा लोधी बिल्कुल मेज़बान भी हैं और जानिसारी से ये इस नशिस्त को मुनक़िद करने के लिए इनकी काविशें जो हैं उनका एतराफ़ भी करता हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम सैयद ज़ाहिद हुसैन गदही साहब, आप का एक अपना मकाम भी है और दानिशवर भी हैं। मलिक खावर शफ़क़त भुट्टा साहब अपने वालिद के बाद ये उसी जज्बे को लेकर आगे चल रहे हैं। हमारे प्रोफेसर तारिक हुसैन कादरी साहब और हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब मुल्तान के मैं समझता हूँ कि मुल्तान की इज़्ज़तों में अपने इल्म और दानिश की वजह से उजागर करने वाले जनाब मुफ्ती गुलाम मुस्तफ़ा रिज़वी साहब, डॉक्टर सदी ख़ान कादरी साहब, जो हर ऐसी नशिस्त में अपना वक्त और अपना इल्म और अपना जो है वो कमिटमेंट का मुज़ाहरा करते हैं। आप सबको जितने ज़ोमा यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और जितने यहाँ मैं समझता हूँ अकीदतमंद इस हॉल में इस 43वीं हुसैनिया कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, आप सबको खुशामदीद भी कहता हूँ, आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आप ही की आमद से और आप ही के वजूद से ये रौनकें दुबाला होती हैं। मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि वो पूरी तरह इसमें दिलचस्पी लेते हैं और इस पैगाम को आगे पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। सिब्तैन रज़ा लोधी साहब, आपने फरमाया कि आप अरसा दराज से एक मुख्तसर दोस्तों के टोले से ये काम कर रहे हैं। यकीनन वो काबिल सताइश है और इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो चीज़ नेक नियति से की जाती है उसका अजर मिलता है, आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। देर सवेर भी हो सकती है लेकिन मिलता है। जो नोट करने वाला होता है वो नोट भी करता है
اور جو حساب چکانے والا ہوتا ہے وہ حساب بھی چکاتا ہے. تو انشاءاللہ جو اس کی ذات ہے وہ نیتوں کے حال جانتی ہے اور آپ کے جذبے کی قدر ہم سب کرتے ہیں. حسینیہ کانفرنس کی ابھی مفتی صاحب نے اپنے کلمات میں کچھ باتیں کی اور میں سن بھی رہا تھا, غور بھی کر رہا تھا, اور کچھ ایسی باتیں تھیں جن سے کہ آپ تھوڑے سے مضطرب دکھائی دیے. بنیادی مقصد ایسی نشست منعقد کرنے کا اور ایسی کانفرنس کی بنیاد رکھنے کا یہی تھا کہ مختلف الخیال زعما کو یکجا کیا جائے اور اس سے قومی یکجہتی کا پیغام اجاگر کیا جائے. سفتیان رضا فرما رہے تھے کہ وزارت مذہبی امور اپنا کردار ادا کرتی ہے, یقیناً کرتی ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن اس پیغام کو عوامی پذیرائی ملتی ہے جب سول سوسائٹی اس پیغام کو اون کرتی ہے. اور یہ جو محفل ہے یہ سول سوسائٹی کی محفل ہے, اس میں سرکاری رنگ نہیں ہے, اس میں ایک والنٹری ایکٹیویٹی ہے, اور یہ شہر کے ہمارے بڑوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اس کا جذبہ جو تھا وہ قابل دید تھا اور ہے. آپ اس جذبے کا مظاہرہ کر رہے ہیں جب آپ یہاں تشریف لاتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, تو وہ جو پیغام ہے یگانگت کا, یکجہتی کا, اخوت کا, بھائی چارے کا, برداشت کا, وہ پیغام آگے جاتا ہے. وہ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور اس پیغام کو آگے پہنچانا. اب جو امام عالی مقام کی جو قربانی ہے اور اس قربانی سے دین اسلام کی جو بہت سی شخصیات نے اس دین کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا ہے, پر امام عالی مقام کی شہادت نے اس کو ایک نیا رنگ دیا ہے اور اس کا اعتراف ساری دنیا کرتی ہے, بالکل کرتی ہے, اور ہر مکتب فکر کرتا ہے. اور آپ نے خود ہی اپنے خطاب میں فرمایا کہ الحمدللہ ویسے تو ساری دنیا میں, لیکن بالخصوص ملتان میں جو اہل سنت ہے ہمارا طبقہ, وہ بالخصوص اس کا اعتراف کرتا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ اکثر جو مجالس اور جلوس ہیں وہ اہل سنت سے منسلک ہیں. تو یہ بہت بڑی اس شہر کی وفاداری کا عملی ثبوت ہے کہ سبیل کی محفل سبیل لگتی ہے, دودھ کی, پانی کی, اور لوگ نیاز و لنگر تقسیم کرتے ہیں, اور اس میں ہر طبقہ کرتا ہے, صرف اہل تشیع نہیں, ہر طبقہ کرتا ہے, اپنی حیثیت کے مطابق سب کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. لیکن آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اور ہمارا یہ خطہ ایک خاص جسے کہتے ہیں نا, ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. آپ مفتی صاحب نے حوالہ دیا کچھ یوٹیوبز کا کہ ان یوٹیوبز پہ ایسا مواد چلایا جاتا ہے جس سے کہ لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے. یقیناً سوچنے کی بات یہ ہے ایسا کون کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے, اور کیوں کرتا ہے, اور خاص طور پہ چنے ہوئے دنوں میں کیوں کرتا ہے. یہ ہے جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میرے ساتھیوں, بزرگوں, نوجوانوں, ایک
5th जनरेशन वॉरफेयर का नाम आपने सुना होगा, जिसको हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं। उस वॉरफेयर में अंदाज बदले हैं। वायलेंस की जगह एक इंटरनल डिसऑर्डर पैदा करने की कोशिश की जाती है, गलत फहमियों को जन्म देकर, तफरीक पैदा करके, दिल आजारी करके कौम को तकसीम करने की एक कोशिश, एक मुनज़्ज़म कोशिश जारी है। और आपने देखा कि पिछले दिनों में हमने उसको बेनकाब करने की कोशिश भी की, और आपके इल्म में होगा कि हमने उन तकरीबन 750 वेबसाइट्स को बेनकाब किया जो डिसइंफॉर्मेशन फैला रही हैं, और उनके ताने बाने उन ममालिक के साथ और उन एजेंसियों के साथ जुड़े हुए हैं जो पाकिस्तान में दाखिली इंतशार को हवा देना चाहती हैं, जो आपको अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना चाहती हैं। उनका अपना एजेंडा है। उस एजेंडे को समझने की ज़रूरत है, और न सिर्फ उसको समझने की ज़रूरत है, उसको शिकस्त देने की ज़रूरत है। और उसको शिकस्त देने का सबसे आला जो तरीका है वो ये है जो आज आपने महफिल सजाई है। ये उसका अमली उसको शिकस्त देने का आपने शाइस्ता अंदाज में बंदोबस्त किया है जो काबिल तारीफ है। वो आपको फोड़ना चाहते हैं, आपने जोड़ दिया सबको। यही आपकी कामयाबी है, और यही तरीका है उस 5th जनरेशन वॉरफेयर को शिकस्त देने का। ये सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सी चीज़ें लगाई जाती हैं, बहुत सी पोस्ट लगाई जाती हैं दिल आज़ारी के लिए, और बहुत सी चीज़ें बग़ैर तस्दीक किए कि उनमें हकीकत कितनी है, सच कितना है, झूठ कितना है, वो आगे पास ऑन कर दी जाती हैं। फिर आपके इल्म में है कि फेक न्यूज़ जो है वो भी एक हकीकत है, और फेक न्यूज़ जो है उसको जन्म दे दिया गया है, और वो फेक न्यूज़ भी इस वॉरफेयर का हिस्सा है। ये उस हिकमत अमली का हिस्सा है जिसको समझने की ज़रूरत है। इसलिए हमें पहली चीज़ तो ये है कि कोई खबर आती है मनफी जिससे आपको तकलीफ होती है, पहले ज़रा आप उस बात की तहकीक कीजिए। फिलफौर जज्बात में आना मुनासिब नहीं है। पहले उसकी तह तक जाइए कि जन्म कहाँ से ले रही है, इसके पीछे कौन है, इसके मकासद क्या हैं, और फिर आप अपनी एक बेहतर मनसूबाबंदी कर सकते हैं कि हमने इसका तदारुक कैसे करना है। आज जिन चीज़ों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जब इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी गई थी तो तब ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। उस ज़माने में ये इंटरनेट भी नहीं था, उस ज़माने में ये सोशल मीडिया का इतना प्रचार भी नहीं था, उस ज़माने में ये 5th जनरेशन वॉरफेयर नहीं हुआ करती थी। तो आज आइए मिल के खराज तहसीन पेश करें उन अपने बड़ों को जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी। उनकी ज़रा दूरबीन निगाह तो देखिए। जो हम आज जिसका जिक्र कर रहे हैं वो उसको कल उसके बारे में सोच रहे थे और उसकी पेशबंदी कर रहे थे, उसकी मनसूबाबंदी करके उन्होंने इस हुसैनिया कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखी। बुनियाद का मकसद था, और आज जैसे जैसे ये चीज़ें सामने आ रही हैं हमें उसकी अहमियत और उजागर होती चली जा रही है। तो मैं सिर्फ आज इस हुसैनिया कॉन्फ्रेंस की अहमियत और ज़रूरत पर जोर देना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत थी, कल थी, आज उससे ज़्यादा है। कल थी, आज उससे ज़्यादा है। और इसकी खुशाइंद बात जो ये है कि इसमें सरकार का नहीं, एक उन्स का अंसर है। लोग अपना वक्त, अपना मोहब्बत, अपना इजहार खुद करने आते हैं, और ये मुल्तान के शहरी
मुल्तान के दानिश्वर, मुल्तान के उलमा, मुल्तान के मशाइख इस नशिस्त को ओनरशिप देते हैं और ओनरशिप उन्होंने दी है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपकी मोहब्बतों का, आपकी तवज्जो का और आपके मुस्बत किरदार का जो अब आप अदा करते आए हैं और कर रहे हैं। और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आज कल और जितने दिन बाकी हैं वो खैर खूबी इख्तिताम पजीर हों, बाहमी एहतराम और वज़ादारी का जो मुज़ाहरा है वो इस अज़ादारी में मुल्तान की वज़ादारी का बहुत अमल दखल है और अपनी रिवायती वज़ादारी से आपने इस अज़ादारी को फ़रोग़ देना है। यही है पैगाम, यही है पैगाम आज की इस 43वीं हुसैनिया कॉन्फ्रेंस का। मैं आपको खराजे तहसीन पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इसको मुनाकिद किया, क्योंकि मुमताज़ाबाद भी हाज़िरी देनी है, मुझे वहाँ पहुँचना है और वक्त हो गया है, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में हुसैनिया कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, हुसैनिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले पर हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में दिन के औकात में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। तहम रात के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।